let's start from the revision part from the last lecture. Okay, so first of all we saw the basic gates in the previous last to last lecture, and or and not gate. After that we saw XOR gate and NOR and NAND gate. NOR and NAND gate are the not of or an AND gate. An XOR gate is basically whenever we have same in both the in case of two inputs, when we have two inputs and one output, when both the inputs are same, we get output as 0, and when both the inputs are different, like 1 0 or 0 1, we get output as 1. And in three input XOR gate, when the number of ones are odd. Okay, the number of ones are odd, then we get 0. And when number of ones are even, sorry, number of ones are odd, then we get 1. And when number of ones are even, we get 0. Okay, so here you can see the number of ones, that is 1 2 3 are 3, right? 3 number of ones, so 3 is an odd number, so we get 1 over here. So basically, so what we can see over here is when an odd or even number of ones can be found out using XOR gate. That's why XOR gate is used for odd and even parity checking. Okay, so number of ones in the input gives us output accordingly. So that's why ये जो XOR gate है इसको odd even parity gate के लिए use कर सकते हैं. Okay, ठीक है. नेक्स्ट इज वी सॉ डी मॉर्गन्स थ्योरम. डी मॉर्गन थ्योरम में क्या कर सकते हैं हम, अगर हमारे वी हैव टू थ्योरम्स इन डी मॉर्गन. फर्स्ट थ्योरम सेज इज in the statement here we can say a plus b, that is a or b and whole bar, the bar can be split into a bar dot b bar. So when हम जब ये बार को स्प्लिट करते हैं तो ये प्लस का बन जाता है मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन मीन्स एंड गेट. So whenever we have an equation and the whole bar on that equation, and to split that bar, the sign or the gate between those two variables or those two inputs changes to either. Like if it is and, then it will convert. Here it is or gate, plus the defines or gate, so or will be converted to and. So plus will be converted to minus, multiplication or dot. So here in the logic gate form, you can say a plus b is or, right? A plus b is or, and this bar defines this not gate. So this is basically NOR gate, and NOR gate ko we have converted into a bar dot b bar. Dot means AND gate, right? So this is AND gate, and here a bar and b bar we are giving by NOT. So a is going through NOT gate, and from NOT gate a is converted to a bar, and then a bar is going into AND gate. Similarly, b is going to the NOT gate, and b is connected to node b bar, and then b bar is going to AND gate. Okay, so these NOT gates can be simply shown using this bubbles or circles, you can say. ये पूरा ऐसे नॉट गेट बनाने की जरूरत नहीं है. ये सिंबल्स आपको पता होंगे, ये नॉर है, ये एंड है और ये नॉट है. ठीक है, सो इसे बबल्ड एंड बोलते हैं. जब इसके इनपुट पे दो बबल्स आते हैं, या फिर इनपुट पे हम नॉट गेट से इनपुट भेज रहे हैं, तो वो बबल्ड एंड बन जाता है. अगर यहाँ पे और गेट होगा तो बबल्ड और गेट. जब भी इनपुट पे बबल्स होते हैं या नॉट गेट होते हैं तो वो बबल्ड गेट बन जाता है. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट थियरम इज whenever we have multiplication, like इसका उल्टा यहाँ पे कैसे था हमें, let me just सो पीछे के स्लाइड में कैसे था कि प्लस का बन जाता था मल्टीप्लिकेशन. सो अभी क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का बन रहा है मल्टीप्लिकेशन और डॉट का बन रहा है प्लस. तो अगर हमें बार को स्प्लिट करना है, तो बार को स्प्लिट करने के लिए हमें ये डॉट का प्लस करना पड़ेगा, और ये बार स्प्लिट हो जाएगा. ए के ऊपर अलग से बार आ जाएगा, बी के ऊपर अलग से बार आ जाएगा. तो ए डॉट बी टोटल का बार इज एंड गेट. ए और बी मल्टीप्लिकेशन में जा रहे हैं और बाहर एक नॉट गेट लगाया हुआ है. दिस इज नैंड गेट, राइट? नैंड गेट को हमने कन्वर्ट किया ए बार प्लस बी बार में. तो प्लस इज व्हाट, और गेट. सो ये और गेट आया, और ये ए बार बी बार जा रहे हैं, तो ए जाएगा नॉट गेट से ए बार बन के, बी जाएगा नॉट गेट से बी बार बन के. तो ये बेसिकली बन गया बबल्ड और गेट. ओके, नेक्स्ट इज नैंड गेट इज एन यूनिवर्सल गेट. जैसे मैंने बोला आपको, नैंड गेट को यूज करके हम सारे गेट्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसलिए नैंड गेट को बोलते हैं यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक. बिकॉज नैंड गेट को यूज करके हम कोई भी गेट बना सकते हैं. फर्स्ट यहाँ पे हमने बनाया है नॉट गेट. नॉट गेट के लिए हमने क्या किया,
ए और बी दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दिया, मतलब हम जो भी इनपुट देंगे वो सेम इनपुट ए पे भी जाएगा और बी पे भी जाएगा। तो अगर हमारा सेम इनपुट जा रहा है तो हमारा नैंड गेट क्या बोलता है, एंड गेट क्या बोलता है, अगर हमारा सेम इनपुट आ रहा है, ठीक है, 1 1 आ रहा है तो आउटपुट आएगा 1, बट हमने नैंड यूज किया है यहाँ पे, राइट, तो नैंड इनपुट आउटपुट आएगा 0 यहाँ पे। ठीक है, तो 1 1 हम यहाँ पे भेज 1 अगर हमने भेजा तो यहाँ पे भी बन जाएगा, यहाँ पे भी बन जाएगा। तो एंड गेट, दिस इज एंड गेट, ओके, एंड हियर वी आर यूजिंग नैंड गेट। सो व्हेन वी विल सेंड 1 and 1 टू बोथ ऑफ दिस एंड गेट इनपुट्स, तो यहाँ पे हमें 1 मिलना चाहिए, बट हमने नैंड यूज किया तो 1 का मिलेगा 0। तो इन दिस केस व्हेन वी आर सेंडिंग 1, द आउटपुट इज 0। अभी हम 0 भेज के देखते हैं, अगर हमने यहाँ पे 0 भेजा तो आइडियली एंड के केस में 0 0 का 0 आना चाहिए, पर अगर ये नैंड है तो ये 0 0 का क्या आएगा, हमें ये 0 का 1 बन के आएगा। तो यही हुआ ना कि अगर हम यहाँ पे 0 भेज रहे हैं तो हमें 1 मिल रहा है। तो ये इन्वर्ट कर रहा है इनपुट को, जब हम इसके दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर रहे हैं या आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो दिस इनपुट्स आर गेटिंग इन्वर्टेड। सो व्हेनेवर वी आर सेंडिंग 1, we are getting 0 as output, and when we are sending 0, we are getting 1 as output. So that is what is not gate is. Not gate does that only, right? It is inverting the input. The next is and. And में भी हमने वही किया, हमने NAND गेट के आगे एक NAND गेट के आगे नॉट, AND गेट के आगे नॉट गेट रहता है तो बन जाता है NAND गेट, राइट। तो ये नॉट के आगे और एक नॉट लगा दिया तो ये नॉट नॉट कैंसिल होके एंड मिल जाता है हमें। बट हम नॉट गेट नहीं यूज कर सकते ना, स्ट्रिक्टली हमें क्या करना है, हमें गेट कंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग NAND गेट ओनली, ओके। तो हमने ये नॉट के जगह पे भी यहाँ पे NAND गेट ही डाल दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे बनाया ना NAND गेट का, NAND गेट से एक नॉट गेट, ये NAND गेट इज इक्वल टू दिस नॉट गेट, राइट। सो हम नॉट गेट की जगह पे ये NAND गेट यूज कर सकते हैं। तो यही किया हमने यहाँ पे भी, ये NAND गेट को ये नॉट कैंसिल करने के लिए और इसको एंड बनाने के लिए और एक नॉट गेट यहाँ पे ऐड किया, ताकि ये नॉट और ये नॉट कैंसिल होके हमें मिल गया एंड गेट। सिमिलरली नॉर को भी हम NAND गेट यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, ये हमने लिया, हमने क्या किया है यहाँ पे देखिए, व्हाट इज नॉर गेट। बेसिकली हम क्या करेंगे, a प्लस बी बार, a प्लस बी बार इज नॉर गेट। तो हम इसको डी मॉर्गन थ्योरम से अगर स्प्लिट करेंगे तो हमें मिल जाएगा a बार डॉट b बार, ठीक है। तो a बार डॉट b बार क्या होता है, डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन व्हेन कम्स इनटू पिक्चर वी सी एंड गेट। तो एंड गेट को हम a बार b बार दे रहे हैं, दिस इज बेसिकली नॉर गेट ओनली। तो एंड गेट को बी बार ए बार बी बार दे रहे हैं, तो इसको हम अभी नॉर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब नैंड गेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए वन वन थिंग इज देयर, हम क्या कर सकते हैं, ये नॉट के जगह पे, ये नॉट के जगह पे हम ये नैंड डाल सकते हैं, नॉट वाला नैंड। तो यहाँ पे एक नैंड आ जाएगा, यहाँ पे एक नैंड आ जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने डाला, ये एक नैंड है, ये एक नैंड है, ठीक है। तो ये नॉट तो निकल गए। अभी हमें ये एंड गेट को भी नैंड में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, एक नैंड डाल दिया, उसके ऊपर और एक नैंड डाल दिया, मतलब ये इन्वर्टर कैंसिल करेंगे तो ये एंड गेट ही है ना, यही वाला जो गेट है भाई। तो ऐसे ही हमें सिमिलरली सारे गेट्स को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यूजिंग नैंड गेट, क्योंकि नैंड गेट से हम नॉट भी बना सकते हैं और हर गेट बना सकते हैं नैंड गेट यूज करके, इसलिए उसको बोलते हैं यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक। यहाँ पे भी हमने वही किया है, ये और गेट को यूज किया है नैंड गेट यूज करके। तो और गेट क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे मैंने सॉल्व किया इक्वेशन, a प्लस बी इज और। तो हमने अगर इस पे 2 बार लगा दिए, 2 बार लगा दिए, तो हम अभी हम ये नीचे वाला जो बार है उसको स्प्लिट करके ऊपर वाला बार हमने वैसे ही रखा है, ठीक है। नीचे वाला बार अगर स्प्लिट करेंगे तो बन जाएगा a बार डॉट b बार, ये प्लस का बन जाएगा डॉट, ऊपर वाला बार अभी तक वैसे ही है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, a बार डॉट b बार, डॉट इज मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन इज एंड गेट। सो एंड गेट को हम a बार डॉट b बार कर रहे हैं, तो ये बेसिकली वही हो गया ना, यहाँ पे जो हम कर रहे थे, a बार डॉट b बार का एंड, ये वाला, और ये वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं नैंड को, ठीक है। तो यही किया हमने यहाँ पे भी, नैंड गेट को a बार डॉट b बार को एंड में डाल के इसको टोटल बार है विच इज नैंड गेट। सो a बार डॉट b बार इज एंड गेट, एंड एंड गेट के ऊपर टोटल बार है, तो ये नॉट गेट वाला टोटल बार, ठीक है। तो a बार इज गोइंग इन, b बार इज गोइंग इन, एंड देन वी आर गेटिंग एंड गेट। नाउ ये बार को है, हमें ये बार को भी निकालना है, तो ये बार को निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे भी एक एंड गेट डाल दिया। ये एंड गेट क्या है, नॉट है, क्योंकि इसके दोनों इनपुट्स शॉर्ट है। तो ये एक NAND गेट हो गया, ये एक NAND गेट हो गया which is giving out a bar and b bar, and these two a bar and b bar are going into another NAND gate which is giving out a bar dot b bar whole bar which is nothing but a plus b, ठीक है। सिमिलरली XOR गेट को भी हमने बनाया है NAND गेट यूज करके। तो XOR is what, XOR is what, a bar
प्लस बी बार, ये एक्सॉर का एक्सॉर ए एक्सॉर बी का एक्सपांशन क्या होता है, ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार। तो ए बार डॉट बी इज दिस इज एंड गेट एंड ए डॉट बी बार इज अगेन एंड गेट। ये टोटल एंड गेट है ना, ये दोनों इनपुट्स का मल्टीप्लिकेशन इज एंड गेट, ये दोनों इनपुट का मल्टीप्लिकेशन इज एंड गेट। तो एंड गेट और एंड गेट को हम और कर रहे हैं, ठीक है, प्लस साइन इज और, राइट। सो वी आर एंडिंग दीज टू, अभी ये दो एंड गेट को हम कर रहे हैं और। तो वैसे यहाँ पे भी वही किया मैंने, ये एंड गेट, ये एंड गेट को मैंने और किया हुआ है। बट ये एंड गेट में सिंपली ए और बी नहीं जा रहा है ना, ए बार और बी बार जा रहा है, इसमें ए बार जा रहा है, इसमें बी बार जा रहा है। तो ए बार के लिए हमने क्या लगाया यहाँ पे, वापस एक नॉट गेट लगा दिया, विच इज नैंड गेट ओनली। नैंड गेट से हमने जो नॉट बनाया है वो, और यहाँ पे बी बार पे हमने वो लगाया। तो यहाँ पे जा रहा है ए बार, यहाँ पे जा रहा है बी, यहाँ पे जा रहा है ए और यहाँ पे जा रहा है बी बार। ये दोनों एंड गेट से होके यहाँ पे जा रहे हैं और गेट पे। अभी हमें क्या करना है, ये एंड और जो है इनको भी नैंड में कन्वर्ट करना है। तो एंड वो कैसे करेंगे नैंड में कन्वर्ट, नैंड के आगे और एक नॉट लगा देंगे तो वो एंड बन जाएगा, राइट। तो ये आप दो नैंड गेट लगा दिए हमने, बन गया एंड गेट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने वही किया, क्योंकि ये दोनों भी एंड गेट्स थे। अभी और को कैसे करेंगे कन्वर्ट, और को हमने यहाँ पे जैसे किया है कन्वर्ट, ये और गेट जो है यहाँ पे, दिस इज और गेट, राइट, यूजिंग नैंड गेट। तो यही यहाँ पे डाल दिया हमने, ठीक है। तो ऐसे हमने एक्सॉर गेट बना दिया यूजिंग नैंड गेट। हाफ एडर को मैंने आपको बता दिया, हाफ एडर क्या करता है, टू बिट्स यानी वन सिंगल बाइनरी इज 1 बिट। तो हम ऐसे 2 बिट्स को ऐड कर सकते हैं यूजिंग हाफ एडर। तो हाफ एडर क्या करता है, बेसिकली ये एडिशन ऑफ 2 बिट्स ही है, एडिशन मींस और गेट। बट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, और गेट में हम कैरी कंसिडर नहीं करते, बट हाफ एडर में हम क्या करेंगे, कैरी भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो समेशन ऑफ 2 इनपुट्स प्लस कैरी। तो हम समेशन कैरी कैसे सम कैसे निकालते हैं, ए एक्सॉर बी से सम निकालते हैं, और कैरी का कैसे निकालते हैं, ए इंटू बी विच इज एंड गेट। सो ये आपको डायग्राम याद करना पड़ेगा, हाफ एडर का ये कंपल्सरी लॉजिक डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे का ऐसा, ठीक है। ए बी और ये सेम ए बी इनपुट भी जा रहे हैं एक्सॉर में, sum is a XOR b and carry is a into b. So XOR क्या बोलता है, जब मेरे पास सेम इनपुट्स होंगे तो मैं 0 दूंगा आउटपुट which is sum, and डिफरेंट इनपुट्स होंगे तो मैं आपको आउटपुट दूंगा 1, ठीक है। और कैरी क्या होता है, कैरी होता है अगर ये इसका एडिशन देखिए, एंड a into b is कैरी। सो a into b, एंड क्या बोलता है, जब मेरे पास दोनों इनपुट्स 1 होंगे तो ही मैं आपको आउटपुट 1 दूंगा, अदरवाइज मैं आपको आउटपुट दूंगा 0। सो ये हो गया कैरी वाला, कैरी का ट्रुथ टेबल, ठीक है। सो दीज वे वी कैन फाउंड सम एंड कैरी। कैरी का मैं आपको और एक ट्रिक बताऊंगी आगे, मैंने वो एक स्लाइड डाला हुआ है, दैट विल कम लेटर। ओके, सो फुल एडर में क्या होता है, हम 3 बिट्स को आपस में ऐड करते हैं। 3 बिट्स को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 बिट्स का 3 बिट्स के लिए वापस सम के लिए एक्सॉर गेट ही आएगा हमेशा। तो सम के लिए एक्सॉर गेट है, तो 3 बिट्स का एक्सॉर इज व्हाट, व्हेनेवर वी हैव ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स तो हमें आंसर आएगा 1, और इवन नंबर ऑफ इनपुट्स है तो हमें आंसर आएगा 0। तो ये हो गया सम एक्सॉर का, एक्सॉर ऑफ ए बी एंड सी। एंड देन कैरी में हम क्या कर रहे हैं, कैरी में हम कर रहे हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ये ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस ए इंटू सी, ठीक है। ये इसका, इससे हमें मिल जाएगा कैरी का आउटपुट। नेक्स्ट इज बाइनरी एडर। बाइनरी एडर को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ वापस अभी स्टार्टिंग से, ठीक है। बाइनरी एडर कैसे बनता है, एक हाफ एडर और 3 फुल एडर को मिला के बनता है बाइनरी एडर। बाइनरी एडर में क्या होता है, 1 हाफ एडर एंड 3 फुल एडर्स। सो नाउ यू कैन सी ओवर हियर, अभी हमें हाफ एडर के लिए कितने इनपुट्स लगते हैं, 2 इनपुट्स लगते हैं, ठीक है। बट फुल एडर के लिए हमें लगते हैं 3 इनपुट्स, एज वी सॉ ओवर हियर 3 इनपुट्स वी नीड इन फुल एडर। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे क्या किया है कि ए और बी तो इनपुट्स है ही एडर के, तो पिछले एडर का जो कैरी फॉरवर्ड है वो कैरी हमने ये एडर को एज एन इनपुट दे दिया है। तो ये एडर का इनपुट क्या हो गया, ए और बी अलोंग विद द कैरी विच इज फॉरवर्डिंग फ्रॉम द प्रीवियस एडर, ठीक है। अगर ये हाफ एडर है तो इसका जो कैरी का जनरेट हो रहा है वो हम एज ए इनपुट टू दिस फुल एडर दे रहे हैं। सिमिलरली ये जो एडर का कैरी है वो वापस हम फॉरवर्ड कर रहे हैं ये एडर पे। सिमिलरली इट गोज ऑन फर्दर, दिस एडर का जो कैरी जनरेट हो रहा है वो हम भेज रहे हैं ये एडर पे, ठीक है। सो नाउ वी कैन, इफ वी वांट टू सी ये हाफ एडर का जो भी एक्सॉर और एंडिंग से कैरी जनरेट होगा और सम जनरेट होगा, वो सम यहाँ पे दे रहे हैं और कैरी जो भी जनरेट हो रहा है वो यहाँ पे भेज रहे हैं। तो एडिशन कैसे होगा, बेसिकली
ये तीनों बिट्स को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। 1010 अगर हम इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, 1010 को अगर हम बाइनरी एडिशन कर रहे हैं, 1010 को ऐड कर रहे हैं 0111 से, तो 1 और 1 का एडिशन क्या होता है, 10 होता है। यहाँ पे मैंने कहीं पे तो मेंशन किया है, ठीक है, आगे के स्लाइड में होगा। तो 1 और 1 का एडिशन क्या होता है, 10 होता है, मैंने आपको बोला था। तो 1 यहाँ पे मैं कैरी कर रही हूँ और 0 यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। 10 इज नॉट इन डेसिमल, 1 and 0 इट इज एक्चुअली 10 नहीं होता है, वो 10 होता है, ठीक है। सो सिंप्लीफाई करने के लिए आई एम सेइंग 10. So 1 I am carrying over here, which is carry as I have written over here, and then 0 I am writing over here. And 1 1 1 का आउटपुट होता है 1 plus 1 plus 1 is 11, which is 1 1. ठीक है, it is not literally 11 but 1 and 1. ठीक है, 1 plus 1 is 1 0 and 1 plus 1 plus 1 is 1 1. So वापस मैं यहाँ पे 1 कैरी कर रही हूँ और 1 यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। Now we have 1 plus 0 plus 1. Again we have 1 plus 1, ignore this 0, 1 plus 1. So 1 plus 1 is again 10. So I am carrying 1 over here again and writing 10 over here. Okay, 0 over here. Okay, now again we have 1 plus 1 plus 0. Now 1 plus 1 is again 10. So now we don't have anything over here to carry forward. So we are writing all that 1 and 0 over here. So our ये दोनों का addition क्या हो गया, 1 0 0 1 0. ठीक है, वही यहाँ पे किया हुआ है, बस यहाँ पे कैरी नहीं लिखे थे इसलिए मैंने ये सेपरेटली कैरी ऐड करके यहाँ पे दिखा दिया आपको, ठीक है। एक्सॉर इन्वर्टर क्या होता है, एक्सॉर इन्वर्टर में क्या कर रहे हैं हम, एक इनपुट जो है एक्सॉर गेट का उसको कॉन्स्टेंटली 1 ही देंगे, ठीक है, उसको कॉन्स्टेंटली 1 ही रखेंगे और ए को फ्लक्चुएट करेंगे 0 और 1 से। तो हमें ए को जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वाई क्या मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा, उसका उल्टा मिलेगा। सपोज वी आर गिविंग 0 ओवर हियर एंड वी ऑलरेडी हैव 1 ओवर हियर। सो अगर 0 यहाँ पे दे रहे ए इज इक्वल टू 0, so when a is equal to 0 0 or 1, two different inputs, so we will get output as 1. So a का उल्टा मिल रहा है यहाँ पे। So XOR inverter is basically constanting the one input to 1 and then variable कर सकते हैं दूसरे input को। तो हम a को 0 दे या 1 दे, आउटपुट हमें a का बार ही मिलेगा। So this is basically XOR inverter. ये कुछ नहीं है, ये चारों इनपुट्स को साइड साइड में लगाया हुआ है और सबको एक हाई दिया हुआ है। दूसरा इनपुट सबका डिफरेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली जो भी हम यहाँ पे इनपुट देंगे उसका बार हमें आउटपुट पे मिलेगा, ठीक है। सो एडर सब्ट्रैक्टर आगे मैंने एक स्लाइड डाला हुआ है, वहां पे मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा में मैंने आपको बोला था ये बूलियन लॉज जो होते हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये a इंटू ए बार है, मैं यहाँ पे ये ऐड कर दूंगी ए बार, a इंटू ए बार इज 0, ठीक है। सो ये बूलियन लॉज आई एम नॉट रिपीटिंग अगेन, क्यूमुलेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ, ये भी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये तीस की आल्सो बूलियन टर्म्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। सो नाउ ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट अ बूलियन इक्वेशन फॉर आउटपुट x एंड राइट द ट्रूथ टेबल फॉर इट। तो अभी उन्होंने हमें क्या दिया है, ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये लॉजिक डायग्राम से हमें इसका बूलियन इक्वेशन बनाना है, ठीक है। बूलियन इक्वेशन मतलब ये आउटपुट कैसे बूलियन इक्वेशन में लिखेंगे हम, वो लिखना है। ये आंसर है एक्चुअली, इसको कैसे सॉल्व किया मैं आपको बताती हूँ आगे, ठीक है। ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसमें जो भी इनपुट्स, ये जो भी गेट्स हमें दिख रहे हैं छोटे छोटे गेट्स, वो सबको हम ऐसे सेपरेटली लिखा है मैंने, ठीक है। दिस इज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट हमें क्या दिख रहा है, नंबर 1 गेट इज व्हाट, और गेट, ठीक है। तो और गेट में हमें क्या मिल रहा है, इनपुट ए और बी मिल रहा है, ठीक है। ये ए जा रहा है ना यहाँ पे और बी भी जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो और गेट क्या कर रहा है, हमें ए प्लस बी दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, एंड गेट। एंड गेट क्या करता है, ए इंटू बी देगा हमें, तो एंड गेट ने हमें दिया ए इंटू बी। थर्ड इज व्हाट, नॉट गेट। तो अभी नॉट गेट के इनपुट में हमें क्या आ रहा है, एंड गेट का आउटपुट। एंड गेट का आउटपुट जो आ रहा है वो नॉट गेट में जा रहा है, राइट। सो एंड गेट का आउटपुट हमने किया नॉट गेट में, ठीक है। वे सॉरी नॉट एंड नहीं, और गेट, ओके आई एम रियली सॉरी, और गेट। तो और गेट का जो भी आउटपुट आ रहा है वो जा रहा है नॉट गेट में, तो और गेट का आउटपुट इज नॉट, ओके। तो और गेट का आउटपुट को हमने नॉट कर दिया। सो ए प्लस बी विच इज और गेट का आउटपुट, उसको हमने बार लगा दिया, मतलब नॉट लगा दिया उसके बाहर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, फोर्थ गेट इज व्हाट, नैंड गेट। तो नैंड गेट भी क्या, बेसिकली ये सेम ही जा रहा है दोनों तरफ इनपुट इसके, ठीक है। नैंड इन्वर्टर है, ये नैंड इन्वर्टर क्या करता है, आउटपुट ऑफ नैंड, ठीक है।
ठीक है, नैंड इन्वर्टर है ये। तो ये क्या करेगा, आउटपुट ऑफ ये जो दोनों दोनों एंड का जो इनपुट आ रहा है इसे, इसका इन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये नैंड इन्वर्टर है राइट, तो इसका एंड का जो भी इनपुट है इसको इन्वर्ट कर देगा, तो आउटपुट ऑफ एंड को इन्वर्ट कर देगा। तो a इंटू बी विच इज आउटपुट ऑफ दिस एंड विल बी इन्वर्टेड, दैट इज उसको बार लग जाएगा। ठीक है, अभी हमें ये चारों गेट का मिल गया, आउटपुट क्या आना चाहिए, अभी ये जाएगा ये फाइनली पांचवे गेट में। पांचवे गेट में क्या जा रहा है, ये नॉट गेट का आउटपुट और ये नैंड गेट का आउटपुट। तो ये नॉट गेट का आउटपुट क्या है, आउटपुट ऑफ द नॉट एंड आउटपुट ऑफ द नैंड इन्वर्टर, एंड आई एम एंडिंग दैट। ठीक है, एंडिंग, नैंडिंग एक्चुअली, नॉट एंडिंग, ये नैंड गेट में जा रहा है। ठीक है, सो आउटपुट ऑफ नॉट गेट इज व्हाट, हियर वी कैन से आउटपुट ऑफ नॉट गेट इज a plus b whole bar and this output of NAND inverter is a into b bar। ठीक है, इसके बीच में हम NAND करें। NAND क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंड टोटल बार। ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया मैंने डॉट से और टोटल बार लगा दिया विच इज NAND गेट। ठीक है, तो अभी हम ये टोटल टर्म को x कंसिडर करते हैं और ये टोटल टर्म को y कंसिडर किया मैंने, तो बेसिकली यही हुआ ना, x डॉट बाय y टोटल बार। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये टोटल बड़ा जो बार है इस पे, इसको हमें स्प्लिट करना है डी मॉर्गन के अकॉर्डिंग, तो ये स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे बीच में प्लस आ जाएगा, राइट गाइस। तो ये स्प्लिट किया मैंने, तो मतलब ये बार यहाँ पे चला गया, ये आधा बार यहाँ पे चला गया, तो ये और बीच में प्लस साइन आ गया, तो ये टोटल a प्लस बी बार बार प्लस a इंटू बी बार बार। ये वापस स्प्लिट करने पे वापस एक बार इस पे और इस पे पार आ गया ना टोटल। मैंने ये टोटल स्प्लिट नहीं किया, मैंने सिर्फ ये दो ब्रैकेट्स के बीच में स्प्लिट किया है, ये ब्रैकेट के ऊपर वैसे ही रहेगा टोटल बार। ठीक है, सो अभी ये दोनों बार आपस में कैंसिल हो गए, तो हमें मिल गया a प्लस बी प्लस a इंटू बी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं या फिर पूरा ऐसे के ऐसे भी रखा तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा ऐसे ही रखा हुआ है, बट यू कैन सिंप्लीफाई दिस फॉर a प्लस बी प्लस a इंटू बी, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, या फिर ये या फिर ये। ओके, सो नेक्स्ट इज दिस, फोर्थ क्वेश्चन में वो क्या बोल रहे हैं कि ये डायग्राम को प्रूव करो कि ये डायग्राम, ये दोनों डायग्राम इक्वल है, ऐसे प्रूव करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड क्या बोलता है कि नैंड गेट है यहाँ पे, तो a अगर a और b हमने अगर दिया यहाँ पे, तो a इंटू बी टोटल बार। ठीक है, नैंड गेट है ना, ये नैंड गेट का इक्वेशन यही है, a इंटू बी बार। वापस यहाँ पे टू सेकंड गेट भी वही कर रहा है, a इंटू बी डॉट बार, a डॉट बी बार, तो वापस a डॉट बी बार। ठीक है, और बीच में वापस नैंड गेट है, तो वापस मल्टीप्लाई करेंगे और वापस एक बार डाल देंगे, ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके वापस एक बार डाल देंगे। तो अगर ये बार को स्प्लिट करना है तो यहाँ पे प्लस आएगा और ये बार अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अभी ये वापस ये बार कैंसिल हो जाएगा, ये बार कैंसिल हो जाएगा, सेम a इंटू बी प्लस a इंटू बी, तो ये a इंटू बी हो गया एंड गेट, ये इंटू बी हो गया एंड गेट और बीच में आ गया और गेट। तो वही है ना, ये एंड गेट और बीच में आ गया और गेट। ये और गेट है गाइस, यहाँ पे ये गलती से किया है उन्होंने, ये नॉर नहीं है और है, देखिए यहाँ पे उन्होंने वापस एक्सप्लेन किया हुआ है, ये यहाँ पे बबल गलती से दिया हुआ है। ठीक है, I'll erase that when I send you the PPT, before sending the PPT. ठीक है, so this is also proved. Now let us move on to आज के लेक्चर में हम मोस्टली सब क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, विद पर्सपेक्टिव फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे। सो ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम यूजिंग गेट्स फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। अभी हमने क्या किया है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, ड्रॉ डायग्राम के ऊपर से इक्वेशन निकाला हमने। अभी उन्होंने हमें इक्वेशन दिया हुआ है और हमें डायग्राम क्रिएट करना है, लॉजिक डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले तो हम ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, ये सिंप्लीफिकेशन छोड़ दो आप, पहले क्या किया, a बार डॉट b बार डॉट a प्लस बी होल बार और टोटल बार। अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इन्होंने क्या किया, इक्वेशन को स्प्लिट किया, ये टोटल टर्म को s कंसिडर किया, ये टोटल टर्म को p कंसिडर किया, या फिर x या a b कुछ भी कंसिडर। a b क्यों नहीं कंसिडर किया, बिकॉज a एंड b आर ऑलरेडी यूज्ड इन दिस टर्म्स, राइट। सो s और p ऐसे दो वेरिएबल्स जो यूज नहीं किए इसमें, वो कंसिडर किए। ठीक है, तो अभी s हमें क्या बोलता है, s बोलता है a बार डॉट b बार। ठीक है, s क्या बोलता है, a बार डॉट b बार, तो डॉट मीन्स एंड, और डॉट a बार और b बार जा रहे हैं, तो a बार और b बार को मैं ऐसे नॉट से भेज सकती हूँ एंड के अंदर, वही किया है मैंने। ठीक है, ये एंड गेट बनाया मल्टीप्लिकेशन के लिए, और सिंस इट इज a बार एंड b बार, मैंने यहाँ पे नॉट के बबल लगा के फिर a और b को अंदर भेजा। ठीक है, सिमिलरली नाउ आई हैव a प्लस बी होल बार। ठीक है, जब भी सेपरेट a बार और b बार रहता है तभी मैं नॉट लगाती हूँ, बट जब होल बार आता है, होल बार मतलब क्या, उसके आउटपुट पे नॉट गेट लगेगा। ठीक है, नाउ a प्लस बी इज और गेट,
और गेट के आउटपुट पे मैंने बार लगा दिया, ठीक है, विच इज बेसिकली नॉर गेट ओनली। और ये दोनों आउटपुट क्या हो रहे हैं, वापस आपस में एंड हो रहे हैं, एंड होके वापस टोटल बार है, इसका मतलब क्या है, वो नैंड है। तो यहाँ पे नैंड गेट लगा दिया तो हमें मिल गया ये इक्वेशन, ठीक है। सो एग्जाम प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक्चुअली आपको ये इसका जो आउटपुट है, इसके आउटपुट पे आपको ये दिखाना चाहिए कि आपको a बार डॉट b बार मिल रहा है। यहाँ पे भी आपको a प्लस बी टोटल बार ऐसे दिखाना चाहिए लिख के, और वापस यहाँ पे आउटपुट पे y इज इक्वल ये टोटल इक्वेशन लिखना चाहिए। विच मीन्स आप क्या कर रहे हो, आप एवरी छोटे छोटे गेट के आउटपुट पे आपको क्या मिल रहा है वो आप दिखा रहे हो लिख के, ठीक है। दोज पॉइंट्स, दोज लिटिल थिंग्स कंसिस्ट ऑफ वन पॉइंट्स, वन मार्क्स। सो अगर आप ऐसे छोटे छोटे लिखोगे नहीं तो वो डायरेक्ट अगर आप सॉल्व करके आंसर लिख दोगे तो आपको ये एक एक दो मार्क्स आपके कट जाएंगे, ठीक है। सो एवरी गेट के आउटपुट पे आपको क्या मिल रहा है, लाइक यहाँ पे मुझे एस मिल रहा है तो ए बार डॉट बी बार मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने डायरेक्ट स्नैपशॉट लिया हुआ है लेस्ट चैप्टर में से, इसलिए यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखा है, तो आपको यहाँ पे नोटबुक में आपने लिखना चाहिए ये, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइंड द बूलियन इक्वेशन ऑफ द फॉर द गिवन लॉजिक डायग्राम। अभी वापस इन्होंने ये 3 लॉजिक डायग्राम दिए हैं और इसके बूलियन इक्वेशन बनाने हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए जा रहा है नॉट गेट में, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ए बार मिलेगा, ठीक है। तो ए बार और बी, ए बार और बी का एंड हो रहा है तो ए बार डॉट बी। फर्स्ट इज वेरी सिंपल। नाउ सेकंड इज एक्सॉर, ठीक है। एक्सॉर क्या कर रहा है, ए जाना चाहिए एक्सॉर में, बट इधर नॉट है तो यहाँ पे जाएगा ए बार, बी का बी बार जाएगा, तो बी ए बार एक्सॉर बी बार जाएगा, ठीक है। तो ए बार एक्सॉर बी, सेकंड का आंसर, ठीक है। इसको आप वापस और स्प्लिट भी कर सकते हो या नहीं करना किया तो भी चलेगा। स्प्लिट कैसे करेंगे, एक्सॉर का क्या करता है, ए बार बी प्लस ए बी बार करता है, राइट, एक्सॉर। सो नाउ वी हैव थर्ड इज दिस, थर्ड ये डायग्राम क्या बोलता है, पहले किया है हमने और गेट, और गेट में क्या जा रहा है, ए बी, सो ए प्लस बी यहाँ पे मिलेगा हमें, ठीक है। यहाँ पे एंड है, एंड में क्या जा रहा है, ए बी, तो ए इंटू बी यहाँ पे मिलेगा, तो ए प्लस बी और ए इंटू बी जा रहा है नॉर गेट में। तो नॉर गेट क्या बोलता है, ए प्लस बी और ए इंटू बी का एडिशन और टोटल बार। ये हो गया थर्ड बुलियन डायग्राम का इक्वेशन, सॉरी लॉजिक डायग्राम का बुलियन इक्वेशन, ठीक है, अंडरस्टूड। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? अभी हम एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो उसके पहले इफ यू गाइज हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, ठीक है। I'll take that as no doubt and I'll move further. Okay, so next is this question. These are the previous board questions which I am solving over here. ठीक है, first is select the correct alternatives. Correct answer आपको select करना है इसमें। तो first question क्या है, the output of the NOR gate is high when output of the NOR gate is high। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो आप साइड में ऐसे रफ में ये नॉर का डायग्राम बना दीजिए, ठीक है। सो आउटपुट ऑफ द नॉर गेट इज हाई, कैसे कब होता है नॉर गेट का हाई आउटपुट, ठीक है। ये है और गेट, और यहाँ पे बार लिखा हुआ है मैंने, वो फोटो में आया नहीं है अच्छे से, यहाँ पे नॉर है, ठीक है। नॉर का ये बार आएगा, ए प्लस बी बार है यहाँ पे, ठीक है। नॉर गेट क्या बोलता है, जब 0 0 होगा तब 1 होगा, बाकी सब में 0 होगा। तो when what they are asking is the output of the NOR gate is high when all its inputs are low। सो जब दोनों इनपुट्स या ऑल इनपुट्स इसके लो है तभी नॉर गेट का आउटपुट हाई आता है, हाई इज 1, राइट। सो दिस इज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज it is desired to have output 0 when the two inputs of an electronic gates are equal। The gate one must use will be, now वो क्या बोल रहे हैं, हमें आउटपुट 0 चाहिए और इनपुट में दोनों इनपुट सेम चाहिए। तो ये सेंटेंस पढ़ के हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, एक्सॉर गेट, क्योंकि एक्सॉर गेट ही ऐसा गेट है जब इसके दोनों इनपुट सेम होते हैं तो ये आउटपुट हमें 0 देता है। अगर इनपुट अलग है तो ये आउटपुट 1 दे रहा है, राइट। तो हमें आउटपुट 0 चाहिए और कंडीशन क्या है कि इसके दोनों इनपुट्स सेम होने चाहिए, आर इक्वल, ओके। सो आंसर है इसका एक्सॉर गेट, यहाँ पे डी आंसर, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ द इनपुट टू एक्सॉर गेट इज 1 एंड बी इज इक्वल टू एक्स देन वाई इज, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम। ए का इनपुट ए इज 1, ठीक है, 1 1, एंड बी इज एक्स, एक्स कैन बी आइदर 0 और 1, ठीक है, एक्स कैन बी आइदर 0 और 1। तो अगर एक्स 0 है तो एक्सॉर गेट में 1 और 0 का आंसर क्या आएगा, डिफरेंट है, राइट, डिफरेंट है तो आंसर 1 आता है, और अगर दोनों सेम है तो आंसर आता है 0। तो अब हमें एक्चुअली x क्या मिल रहा है, a 1 है तब आउटपुट मिल रहा है 1,
सॉरी बी सॉरी B0 x के टर्म्स में हमें आउटपुट चाहिए, राइट, x के टर्म्स में। तो जब हमारा x 0 है तो आउटपुट मिल रहा है 1, x 1 है तो आउटपुट मिल रहा है 0, सो बेसिकली दिस इज x बार ओनली, राइट। तो हमारा आउटपुट आएगा, आंसर है x बार। सो हमारा a तो 1 ही है, b जब हम 0 दे रहे हैं तो आउटपुट मिल रहा है 1, b जब हम 1 दे रहे हैं तो आउटपुट मिल रहा है 0, सो दिस इज x बार ओनली ना, x का बार करके हमें आउटपुट में मिल रहा है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी विच इज x बार। Okay, next is when all inputs are low, only then output is low. This is the logic of dash gate. ठीक है, when all inputs are low, then the output is low. So ये तो और गेट ही है, ये आपको एक्चुअली, ये जब आप गेट्स अच्छे से याद रखोगे ना तब आपको ये इजी होगा, क्योंकि हर बार आप हर एक गेट का लॉजिक डायग्राम या फिर ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते बैठोगे तो यू डोंट हैव दैट मच टाइम इन एग्जाम्स, राइट। सो आपको क्या करना चाहिए, ये जो बेसिक गेट्स है इनके ये बेसिक इक्वेशन, बेसिक स्टेटमेंट्स जो है कि इनके क्या इनपुट देंगे और क्या आउटपुट आएगा, ये आपको याद रखना चाहिए। आप अगर और एंड नॉट भी याद रखोगे ना तो बाकी के तो इजी है याद रखने के लिए, क्योंकि और का अगर आप और को नॉट लगाते तो वो नॉर बन जाता है, एंड को नॉट लगाते तो आप बन जाता है नैंड। ठीक है, तो और गेट क्या बोलता है, जब 0 0 है तो ही 0 आएगा, बाकी 1 आएगा, मतलब कोई भी एक इनपुट या बोथ इनपुट्स उसको 1 मिलेंगे तो वो आउटपुट देगा आपको 1। ठीक है, तो व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो, ओनली व्हेन द आउटपुट इज लो। सो ऑल इनपुट्स आर लो तभी ही आउटपुट लो आता है, ओनली देन, ठीक है, अदरवाइज इट इज 1। सो ये होता है और गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फुल एडर इज अ लॉजिक सर्किट विच कैन ऐड 3 बिट्स। ठीक है, हमने देखा ना ये हाफ एडर 2 बिट्स को ऐड करता है, फुल एडर 3 बिट्स को ऐड करता है। ए बी सी 3 बिट्स ले रहे हैं ना हम फुल एडर में। ठीक है, नेक्स्ट इज इन डैश इफ a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू c, देन आउटपुट इज y इज इक्वल टू c बार। ठीक है, नाउ इन्होंने आउटपुट हमें दिया हुआ है और पूछा फिर ये कौन सा गेट होगा। यहाँ पे क्या था कि इन्होंने गेट बताया हुआ था हमें और आउटपुट क्या आएगा पूछा था। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने गेट कौन सा आएगा पूछा है, तो a 1 है और b c है और y इज c बार। सो a 1 है और b c है, y is c bar. So when now b is c, so c can be either 1 or 0. So when c is equal to 1, we should get c bar, right? तो ये 0 और 1 आना चाहिए, 0 और 1 ही आना चाहिए। b का c का बार आना चाहिए, तो 1 है तो 0 आना चाहिए, 0 है तो 1 आना चाहिए। सो ये कौन सा गेट है, सेम है तो हमें 0 मिल रहा है, डिफरेंट है तो हमें 1 मिल रहा है, तो ये एक्सॉर गेट है। ठीक है, whatever you have ना given data, you should always depict that given data into लॉजिक ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में जब ये आप डिपिक्ट करोगे ना तो आपको इजीली आइडिया आ जाएगा कि ये कौन सा गेट है। तो मैंने क्या किया, ए तो 1 ही है तो 1 1 लिख दिया, बी क्या है मेरा, बी सी है, तो सी क्या हो सकता है, इधर 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, और वाई क्या है, सी बार है। तो सी में जो भी मैंने लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पे मैं 0 लिखूंगी, यहाँ पे 0 लिखा है तो यहाँ पे 1 लिखूंगी, बिकॉज वाई सी बार, राइट, सी का इन्वर्टेड वैल्यू। सो अभी मुझे क्या मिल रहा है, जब 1 1 है तो मुझे 0 मिल रहा है, 1 0 है तो मुझे 1 मिल रहा है। दिस इज व्हाट दिस इज सेइंग इज, जब मेरे सेम इनपुट्स है या फिर इक्वल इनपुट है तो मुझे आउटपुट मिल रहा है 0, और मेरे जब डिफरेंट इनपुट्स है तो मुझे आउटपुट मिल रहा है 1। सो दिस इज व्हाट एक्सओर गेट। ठीक है, ये सब के लिए आपको ये सब गेट्स याद रखने पड़ेंगे कि किसका आउटपुट क्या आना चाहिए और किसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, बिकॉज इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर ऑल्टरनेट चूज करेंगे क्वेश्चन में, यू डोंट हैव मच टाइम टू सॉल्व ईच एंड क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन को 5 मिनट सॉल्व करते नहीं बैठ सकते, राइट। आप अगर यहाँ पे सब गेट्स की ट्रुथ टेबल लिखते बैठोगे तो यू वोंट गेट इनफ टाइम टू मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन और कंप्लीट योर पेपर। ठीक है, नेक्स्ट इज एन एक्सॉर गेट गिव्स अ हाई आउटपुट डैश। अब एक्सॉर गेट यही अभी ऊपर ही हमने देखा, एक्सॉर गेट कब हाई आउटपुट देता है, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर, ठीक है, बोथ द इनपुट्स आर डिफरेंट, ये दोनों सेम होंगे या फिर डिफरेंट होंगे तो ही आपको 1 मिलेगा। फर्स्ट क्या बोल रहा है, इफ देयर आर ऑड नंबर ऑफ वंस इन द एंड जीरोस इन द इनपुट। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ वंस होते हैं, राइट, ऑड नंबर ऑफ वंस है तो मिल जाता है हमें 1, बट इवन नंबर होते तो नहीं मिलता ना, बोथ ऑड एंड इवन रहता तो 0 मिलता है क्या हमें, 1 मिलता है क्या हमें, हाई आउटपुट मिलता है, नहीं, दिस इज ऑल्सो नॉट एन ऑप्शन। इफ देयर आर इवन नंबर ऑफ जीरोस इन द इनपुट, इवन नंबर ऑफ जीरोस है इसका मतलब ऑड नंबर ऑफ वंस है, वही हुआ ना वापस, ऑड नंबर ऑफ वंस है तो मिलता है क्या, नहीं मिलता है। वैसे ही आंसर क्या है इसका, ऑड नंबर ऑफ वंस इन द इनपुट। when we have odd number of ones in the input, then we get XOR gate as a gate. ठीक है, next is in boolean algebra a XOR 1 is equal to, now हम a XOR b करते हैं, now b उन्होंने ऑलरेडी 1 दिया हुआ है हमें,
ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे a XOR 1. नाउ व्हाट इज a XOR b? a XOR b is a bar b plus a b bar. सो a bar b और a b bar में हमने b को 1 पुट किया, तो b के जगह पे हमने 1 डाला, a bar into 1 plus a into b bar, so which is 1 का बार. नाउ 1 का बार क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा. और ये a bar into 1 is what? a bar into 1 is a bar. डी मॉर्गन्स थ्योरम की, डी मॉर्गन्स नहीं, बूलियन अलजेब्रा के जो थ्योरम्स देखे थे हमने यहाँ पे, ये इसमें से क्या है? a बार इंटू 1 या फिर a इंटू 1, एनीथिंग इंटू 1 इज दैट वेरिएबल. ठीक है, तो यहाँ पे a बार इंटू 1 रखेंगे तो a बार आ जाएगा, b बार इंटू 1 रखेंगे तो b बार आ जाएगा. वैसे ही हाँ, वैसे ही क्या है? a बार इंटू 1 क्या आ जाएगा? a बार. सो a बार इंटू 1 इज a बार, और ये 1 बार का हो गया 0. सो a इंटू 0 इज 0. तो ये भी पीछे से बूलियन अलजेब्रा से ही आया हमें. सो a बार प्लस 0 इज a बार. ठीक है, ये सब के लिए मैंने आपको बोला बूलियन लॉज आपको ये आने चाहिए. बूलियन लॉज अगर आपको नहीं आएंगे तो आप ये ऐसे इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे. ठीक है, नेक्स्ट इज द आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज 0. आउटपुट ऑफ नैंड गेट कब 0 होता है? एंड गेट क्या, नैंड गेट हम यहाँ पे नैंड गेट ड्रॉ करेंगे डायरेक्टली. नैंड गेट पूछा है तो नैंड गेट का मैंने ट्रुथ टेबल ड्रॉ किया. तो 0 0 0 1 1 0 1 1. तो नैंड गेट क्या बोलता है? जब 1 1 है तो 0 आएगा, बाकी सब 1 आएगा. सो द आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज 0 व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 1. ठीक है, नेक्स्ट इज एन एंड गेट इज पॉजिटिव लॉजिक. इन पॉजिटिव लॉजिक बिकम्स डैश गेट इन नेगेटिव लॉजिक. अब ये पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक क्या है? सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? एंड गेट को ड्रॉ करते हैं. एंड गेट पूछा है तो एंड गेट को ड्रॉ करेंगे. मैंने एंड गेट को ड्रॉ किया. 0 0 का आया 0, 1 0 1 का आया 0, 1 0 का आया 0, और 1 1 का आया 1. तो अब हम क्या कर रहे हैं? नेगेटिव लॉजिक, मतलब ये हो गया पॉजिटिव लॉजिक, विच इज पॉजिटिव लॉजिक इज बेसिकली द डैट गेट इटसेल्फ. नेगेटिव लॉजिक क्या होता है? नेगेटिव लॉजिक मतलब ये सारे बिट्स को, ये जो इनपुट के सब बिट्स है, आउटपुट के सब बिट्स है, ये सब बिट्स को हम करेंगे उल्टा. ठीक है, नेगेटिव करेंगे, इन्वर्ट करेंगे. लाइक मैंने ये 0 0 का कर दिया 1 1, 0 1 का हो गया 1 0, 1 0 का हो गया 0 1, मतलब ये 0 को 1 कर रहे हैं, 1 को 0 कर रहे हैं, और 1 1 का हो गया 0 0. यहाँ पे भी आउटपुट पे भी हम वही कर रहे हैं. 0 0 0 1 का हो गया 1 1 1 0. तो अभी ये कौन सा गेट बन रहा है नेगेटिव लॉजिक के साथ? देखते हैं. 1 1 is 1, 1 0 is 1, 0 1 is also 1, and 0 0 is 0. ये तो बन गया और गेट. ठीक है, सब कोई एक इनपुट या दोनों इनपुट 1 है तो मिल रहा है 1, अदरवाइज हमें मिल रहा है 0. तो ये हो गया और गेट. So an AND gate in positive logic becomes OR gate in negative logic. Negative logic क्या कर किया मैंने? बेसिकली सिंपली मैंने हर एक बिट को, इनपुट आउटपुट सब बिट्स को मैंने इन्वर्ट कर दिया. अगर 1 है तो 0 कर दिया, 0 है तो 1 कर दिया. ठीक है, ये इधर और एक तरीका है फाइंड आउट करने का. a इंटू बी का नेगेटिव लॉजिक मैंने क्या किया? a इंटू बी इज एंड गेट, राइट? एंड गेट का इक्वेशन. तो a इंटू बी को बार लगा दिया. नेगेटिव मतलब बार, राइट? सबको नॉट किया मैंने, इन्वर्ट किया. तो a इंटू बी बार. सो a बार प्लस बी बार, ये हो गया और गेट. ठीक है, excuse me. Okay, so next is an AND gate in positive logic becomes dash gate in negative logic. ठीक है, मैंने वापस लिखा है क्वेश्चन. ठीक है, मैंने ये 2 बार लिखा है क्वेश्चन, नेवर माइंड. नेक्स्ट इज 11. In dash gate, when at least one of the inputs is low, output is high. ठीक है, in dash gates, in which gate where at least one of the input is low, output is high. ठीक है, अभी कोई भी एक इनपुट लो हो गया तो आउटपुट हाई होता है. एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट्स इज लो, आउटपुट इज हाई. ठीक है, तो ये जो दिए है एक्सॉर, नॉर एंड एंड, इनके ट्रुथ टेबल मैंने बना दिए. ठीक है, सो a इंटू 0, 0 इंटू 0 इज 1 फॉर नैंड. ये जो नैंड गेट का ट्रुथ टेबल है, ये क्या बोल रहा है? व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट्स इज लो. तो एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट्स मतलब ये 3 होने चाहिए, फर्स्ट 3, क्योंकि इसमें से एक और लो है ही, कम से कम एक लो है ही. तो एक लो है ही, उसमें मिल रहा है हमें 1 1 1. ये वाला नैंड गेट का ही आंसर हमें मिल रहा है. ठीक है, यहाँ पे देखते हैं. तीनों में से एक लो है, मतलब ये 3 हो सकते हैं. तो हमें तीनों में से हाई मिल रहा है क्या? तीनों भी नहीं, ये दोनों लो मिल रहे हैं. सिमिलरली ये 3 होते हैं, वन ऑफ द इनपुट्स इज लो. तो ये 3 में भी ये 0 मिल रहा है हमें. तो हमारा आंसर है नैंड गेट. नैंड गेट ही ऐसा गेट है जिसमें हम एक दोनों इनपुट या एक इनपुट भी लो रखेंगे तो हमें आउटपुट मिलता है हाई, विच इज 1.
ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो फटाफट ऐसे तीनों जो भी आंसर्स है, एक्सॉर गेट आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने वो ड्रॉ नहीं किया। ठीक है, ए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एक्सॉर ए इज इक्वल टू व्हाट। नाउ लेट अस सॉल्व ए एक्सॉर ए। बेसिकली ए एक्सॉर बी क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बार ए बी बार। ठीक है, ये बी है, ये थोड़ा इरेज हो गया है यहाँ पे फोटो में। ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, तो ए बार बी प्लस ए बी बार पे हम, बट हमारे पास बी इज व्हाट नाउ, ए ओनली, तो बी इज इक्वल टू ए, तो ए बार प्लस ए बार ए, सो ए बार इज जीरो, ए बार ए इज ऑल्सो जीरो। ये जो बुलियन लॉज है पीछे जो हमने देखे थे, जीरो प्लस जीरो इज जीरो, सो दैट्स व्हाई ए बार ए एक्सॉर ए इज जीरो, सो ये ए वाला आंसर है। ठीक है, एक्सप्लेन हाफ एडर विद इट्स ट्रुथ टेबल, विच हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा, तो वही स्लाइड आपको वापस यहाँ पे आंसर में लिखना है, हाफ एडर को ट्रुथ टेबल के साथ एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आई हैव नॉट अभी बार बार मैंने वो स्लाइड ऐड नहीं किया। नेक्स्ट इज राइट द ट्रुथ टेबल फॉर नॉट, नॉर एंड गेट। एकदम इजी है ये क्वेश्चन। नॉट गेट का ट्रुथ टेबल क्या है, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। नॉर गेट का क्या हो जाएगा, और गेट का नॉट, तो और गेट क्या बोला है, 0 0 का 1, ये नॉर का ट्रुथ टेबल है, ये एंड का ट्रुथ टेबल है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला, सिंपली उन्होंने तीनों के ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने बोले। ऑलवेज ऑलवेज रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, कि वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं हमें। आर दे आस्किंग अस टू ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम और ट्रुथ टेबल और सिंबल। कभी कभी सिंबल भी पूछते हैं कि सिंबल क्या है, नॉट गेट का सिंबल क्या है, नॉर का सिंबल क्या है, एंड का सिंबल क्या है, वो क्वेश्चन मैंने आगे डाले हैं। ठीक है, तो ऑलवेज ऑलवेज रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, और जितना पूछा है उतना ही उतना ही आंसर में लिखिए। अभी यहाँ पे सिर्फ ट्रुथ टेबल पूछा है हमने, इसलिए मैंने आंसर में सिर्फ तीनों के ट्रुथ टेबल ड्रॉ किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्ट एंड नॉट एंड नॉर गेट बाय यूजिंग नैंड गेट। अभी पीछे हमने एक्सप्लेन किया कि नैंड गेट कैसे यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक है, तो वो नैंड से हम कैसे एंड नॉट नॉर बना सकते हैं। सो मैंने वापस यहाँ पे डाला नहीं है, यू कैन रेफर टू द प्रीवियस स्लाइड आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्रॉ द लॉजिकल डायग्राम फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसका लॉजिक डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, ये यहाँ पे अच्छे से देखिए। ठीक है, नाउ द लॉजिक बूलियन इक्वेशन व्हिच वी हैव इज a bar डॉट b प्लस a b बार। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको डिवाइड करते हैं। नाउ ये फर्स्ट हाफ जो है, ठीक है, ये क्या बोलता है, डॉट है इसके बीच में, मतलब ये क्या है, एंड गेट। एंड गेट में इनपुट क्या जा रहा है, a बार b। ठीक है, ये पहले मैंने एंड गेट ड्रॉ किया और इनपुट जाएंगे a बार b, बट a बार हम डायरेक्ट नहीं दे सकते ना, a नॉट गेट के थ्रू बार बन के फिर यहाँ पे जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना पीछे कि जब हर गेट के आउटपुट पे आप लिखिए कि आउटपुट क्या आ रहा है उसका, वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। देखिए ये नॉट गेट के आउटपुट पे मुझे ए बार मिल रहा है जो मैंने आउटपुट इनपुट में जा रहा है यहाँ पे। सिमिलरली ये बी जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, ए बार बी, ये हो गया एंड गेट का आउटपुट विच इज ए बार बी। सिमिलरली ये वापस और एक एंड गेट है, इसमें जा रहा है ए वैसे के वैसे ही जा रहा है। अगर आपको ऐसे नहीं ड्रॉ करना है तो यहाँ पे आप वापस ए और बी ऐसे लिख सकते हो, ये मैंने सिमिलर सेम आउटपुट को यहाँ पे डाइवर्ट किया है। ऐसे नहीं लिखा तो भी चलेगा, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे लिखिए। ठीक है, सो ये ए जा रहा है वैसे ही वहां पे, बिकॉज ए वैसे ही जाएगा, और इनटू बी बार। अब बी बार कैसे डालेंगे, वापस नॉट के, नॉट से ये बी का बन जाएगा बी बार, और ये ए बी ए और बी बार इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए डॉट बी बार। ठीक है, अब ये ए बार डॉट बी और ए डॉट बी बार कैसे जा रहे हैं, और हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे और गेट डाला और इसको ऐड कर दिया। ठीक है, ये और गेट डाल के ये दोनों ऐड हो गए। और गेट इज व्हाट, और गेट व्हाट इट डज इज एडिंग द टू ऑपरेंड्स, राइट, टू इनपुट्स। तो ये एक इनपुट है, ये एक इनपुट है, ये दोनों इनपुट को ऐड कर रहा है ये। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल लॉजिक डायग्राम फॉर द गिवन इक्वेशन, गिवन और लॉजिक बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्लेन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन बेसिक गेट्स विद डेफिनेशन, सिंबल एंड ट्रुथ टेबल। यही बेसिक गेट क्या है, एंड है, और है। बेसिक गेट्स क्या होते हैं, एंड, और एंड नॉट। ये मैंने पिछले बार एक्सप्लेन किया था, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस अगेन। सो इसमें क्या पूछा है उन्होंने, बेसिक गेट का डेफिनेशन पूछा है, सिंबल पूछा है, और ट्रुथ टेबल पूछा है। डेफिनेशन इज व्हाट, डेफिनेशन मतलब ये क्या करता है, तो मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है, एंड गेट इज अ गेट which gives output as high or 1 only when all the inputs are high, otherwise gives the output as low. This is the definition for AND gate. So AND gate what it does is जब all the inputs are high then only it gives output as high, otherwise the output is 0. ठीक है, this is the symbol of AND gate and this is the truth table and this is the definition.
नेक्स्ट इज और गेट। और गेट क्या बोलता है? और गेट का डेफिनेशन इज, और गेट इज द गेट which gives output high when if or 1 output high or 1 if at least one of the inputs is 1. At least one means it can be 1 एटलीस्ट एक इनपुट या फिर सब इनपुट या फिर एक से ज्यादा भी चलेगा उसको 1। ठीक है, सो एटलीस्ट 1 और ऑल 1, देन ओनली इट इज गिविंग आउटपुट एज 1, अदरवाइज आउटपुट इज 0। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉट गेट। नॉट गेट का डिफिनेशन तो सबसे सिंपल है, इट इन्वर्ट्स द इनपुट इन द आउटपुट एंड देयरफॉर नोन एज इन्वर्टर। ठीक है, सो ये सिंबल है उसका और ये ट्रूथ टेबल है उसका। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन ऑड इवन पैरिटी चेकिंग बाय एक्सॉर गेट, जो हमने फर्स्ट ये लेक्चर के स्टार्टिंग में भी हमने वही किया। एक्सॉर पैरिटी चेकिंग का एक्सप्लेन करना है आपको वो, और ट्रूथ टेबल बनाना है। स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स थ्योरम। सो डी मॉर्गन के जो दो थ्योरम है वो आपको यहाँ पे लिख के स्टेटमेंट्स लिख के प्रूव करने हैं। ठीक है, Why NAND gate is called universal building block? Explain with construction. Constructions क्या है? यही है constructions, इसी को constructions बोलते हैं। And not, nor और बाकी सब gates को बनाना using NAND gate. तो construction means NAND gate use करके बाकी सब gates को कैसे बनाते हैं हम, वो यहाँ पे explain करना है। और NAND gate को building block क्यों बोलते हैं universal building block? Because वही statement लिखना है कि because we can construct any gate using NAND gate. ये पीछे मैंने explain किया हुआ है। Next question is, give the difference between half adder and full adder. Draw the diagrams for both adders and their truth tables. Okay, so यहाँ पे मैंने सिर्फ definitions डाले हैं because ये adder के diagrams and truth tables पीछे already slide में है, included है। ठीक है, so half adder क्या बोलता है? It can add 2 bits suitable only for LSB column addition. LSB is what? LSB को कैसे explain करेंगे हम? Suppose I have with the help of this example I can explain. ठीक है, कहाँ पे गया वो? यहाँ पे देखिए। सो ये सपोज मेरा पूरा बिट है, तो इसको सिर्फ 0 और ये 2 बिट को ही ऐड करता है, मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब जो एकदम लेफ्ट के 2 बिट्स है ना उसको ही ऐड करता है हाफ एडर, विच मीन्स इसका यही मतलब है कि ये सिर्फ दो बिट्स को या फिर 2 बाइनरीज को ही ऐड कर सकता है। तो ये सिर्फ आप डेफिनेशन लिख दीजिए ऐसे कि इट इज सुटेबल फॉर एलएसबी कॉलम एडिशन, मतलब लास्ट में जो 2 बिट्स है उसको ही ऐड करता है, मतलब बेसिकली उसका मीनिंग यही है कि वो सिर्फ 2 बिट्स को ही ऐड करता है। ठीक है, तो ये किस लिए सुटेबल होता है? एलएसबी कॉलम एडिशन के लिए। ये एग्जांपल है इसका। फुल एडर इन दी हायर कॉलम्स देयर मे बी कैरी फ्रॉम एलएसबी कॉलम और प्रीवियस कॉलम, 3 बिट एडिशन इज रिक्वायर्ड फॉर दी फुल एडर टू परफॉर्म। ठीक है, now next is inclusive. How inclusive OR gate differs from exclusive OR gate? Give symbols and truth table. इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और में क्या फर्क है? इंक्लूसिव और इज नॉर्मल और गेट और एक्सक्लूसिव और अपना एक्सॉर गेट है। ठीक है, सो द मेन डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव और इज in XOR, which is exclusive OR, both inputs are high, the output is low, but in inclusive OR output is high. So इसका बेसिक डिफरेंस क्या है? जब ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे तो आपको अच्छे से समझेगा। जब दोनों इनपुट्स हाई है और में, तब इसका आउटपुट मिलता है 1, बट यहाँ पे दोनों इनपुट लो है, हाई है, तब हमें आउटपुट मिल रहा है लो। तो ये बेसिक डिफरेंस है एक्सॉर गेट और OR गेट में, राइट। बाकी डिफरेंस भी बता सकते हैं हम, बाकी सब सेम है। ठीक है, 0 0 का 0 आ रहा है, 0 1 का 1 आ रहा है, 1 0 का यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो डिफरेंस क्या है? जब इसके दोनों हाई है तो ये 1 दे रहा है, ये दोनों हाई है तो 0 दे रहा है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव OR और OR गेट एंड एक्सक्लूसिव OR और एक्सॉर गेट। यहाँ पे एक्सॉर आएगा, मैंने आ गया और लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्सॉर आएगा। ठीक है, एक्सॉर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज मैंने बोला था कि एडर सब्ट्रैक्टर सर्किट को हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने अच्छे से एडर सब्ट्रैक्टर सर्किट को एक्सप्लेन किया हुआ है। ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ 4-bit एडर सब्ट्रैक्टर सर्किट एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। ओके, सो ये है सर्किट डायग्राम एडर सब्ट्रैक्टर का। एडर सब्ट्रैक्टर में क्या किया है? 4 फुल एडर्स है और यहाँ पे एडर फुल एडर्स के इनपुट पे ये एक्सॉर गेट, ये आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, याद रखना, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, सो एडर सब्ट्रैक्टर सर्किट क्या बोलता है? ये जो सब्ट्रैक्टर बिट है इनपुट में जो जा रहा है, अगर ये 0 हुआ, विच मीन्स ये सपोज आप ये कंसिडर कर सकते हैं, ये एक फ्लैग है एक तरीके का, मतलब अगर ये फ्लैग मैंने 0 रखा है तो मुझे सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, मुझे सिर्फ एडिशन करना है। बट अगर मेरा ये SUB बिट इज 1, ठीक है, देयर आर 2 कंडीशंस, राइट, आइदर अ वेरिएबल कैन बी 0 और द वेरिएबल कैन बी 1। ओके,
So whenever my subtraction bit is 0, which means I do not want to subtract, I want this circuit to perform as an adder, to add. ठीक है, एडिशन के लिए मुझे सर्किट यूज करना है. बट जब मेरा ये सब्ट्रैक्टर बिट 1 है, इसका मतलब मुझे सर्किट में ये सर्किट में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है. ठीक है, तो आपको ये सब्ट्रैक्शन एक्चुअली करना नहीं है. ठीक है, ये कैसे सब्ट्रैक्शन करता है या फिर ये कैसे सर्किट परफॉर्म करता है, ये मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी. ठीक है, नाउ सपोज माय एसयूबी विच इज सब्ट्रैक्टर बिट इज 0. ठीक है, फर्स्ट केस जब मुझे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं करना है, तो ये बेसिक क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, ये जब 0 है तो हम पहले कंसिडर करते हैं ये फुल एडर पे 3 इनपुट्स क्या क्या आएंगे. ठीक है, फर्स्ट इनपुट इज सब्ट्रैक्टर विच इज नाउ 0, as we have considered this sub is equal to 0 in first case. ठीक है, तो ये 3 इनपुट क्या आएंगे, ये फुल एडर को 3 इनपुट्स होते हैं, राइट. तो अब हम डिटरमाइन करते हैं कि ये 3 इनपुट्स क्या आएंगे. फर्स्ट इज सब इनपुट विच इज कमिंग टू दिस एडर. नेक्स्ट इज ये सेकेंड इनपुट क्या आ रहा है कि एक्सॉर ऑफ B0 एंड सब. ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्सॉर गेट में क्या आ रहा है, सब आ रहा है और B0 आ रहा है, राइट. सो सेकेंड इनपुट टू द फुल एडर इज एक्सॉर ऑफ B0 एंड सब. तो सब और B0 को एक्सॉर. ठीक है, नाउ सब इज 0, अवर सब इज 0, यहाँ पे हमें कंसिडर किया ना सब 0 है, तो 0 एक्सॉर B बार. तो एक्सॉर क्या बोलता है, एक्सॉर का एक्सपांशन किया मैंने 0 बार B0 प्लस 0 B बार. ठीक है, A और B का सब एक्सॉर कैसे करते हैं वैसे ही. तो 0 बार का 0 का बार क्या आएगा, 1 आएगा. ये B0 वैसे ही रहेगा और 0 इंटू एनीथिंग इज 0. ओके, सो ये 0 प्लस B0 इज B0. ठीक है, सो सेकेंड इनपुट क्या आ रहा है हमारे फुल एडर को, B0. नाउ व्हाट इज थर्ड इनपुट टू द फुल एडर, डायरेक्ट A0 आ रहा है यहाँ पे. ठीक है, सो फर्स्ट इनपुट तो 0 है, तो ये 0 एडर में कैसे आएगा, फुल एडर क्या करेगा, 0 प्लस B0 प्लस A0. 0 तो कुछ ऐड करके मतलब ही नहीं है, तो हमारा फुल एडर क्या आउटपुट देगा, A0 प्लस B0. ठीक है, तो हमारा एडिशन परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे. तो जब हमारा SUB बिट इज 0, देन ये बेसिकली सिर्फ A और B का एडिशन करेगा. ठीक है, ये यहाँ पे भी सेम ही आएगा. SUB 0 आ रहा है, फिर एक्सॉर गेट में क्या आ रहा है, B1 और S1 सब 1 आ रहा है, और ये इसका एक्सॉर इधर जा रहा है और डायरेक्टली A1 आ रहा है. ठीक है, तो ये गेट में क्या आएगा, हमें A1 प्लस B1 आएगा. सिमिलरली ये गेट में इसमें क्या आएगा, फुल एडर में A2 प्लस B2 आएगा, और इसमें क्या आएगा, A3 प्लस B3 आएगा. ठीक है, समझा A2 B2 A1 B2 A1 B1 A0 B0 कैसे आ रहा है, क्योंकि हमने सब यहाँ पे 0 कंसिडर किया. यहाँ पे मैंने सॉल्व भी किया कि सब 0 है, तो सेकंड वाला जो एक्सॉर है वो सिर्फ B0 मिल रहा है, B1 मिलेगा, B2 मिलेगा या B3 मिलेगा. और थर्ड इनपुट इज डायरेक्टली A0 A1 A2 A3. ठीक है, नेक्स्ट इज नाउ अवर सब इज 1. ठीक है, सब अगर 1 है मतलब हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है. सब्ट्रैक्शन परफॉर्म मतलब ए बी माइनस ए कर रहे हैं हम. ठीक है, नेक्स्ट बिट बड़े बिट को हम हमेशा बड़े बिट में से सेकंड छोटे बिट को माइनस करते रहे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को, तो हम करेंगे B माइनस ए. ठीक है, तो अभी हमें वापस डिटरमाइन करना है कि हमारे फुल एडर को क्या मिल रहा है, इनपुट 3 इनपुट्स कौन से मिल रहे हैं फुल एडर को. ठीक है, फर्स्ट इज सब, वो तो कॉमन ही रहेगा, सब तो आ ही रहा है. बट नाउ हमारा सब क्या है, 1 है ये केस में. ठीक है, नेक्स्ट इनपुट इज अगेन सब प्लस B0, सब एक्सॉर B0, वही रहेगा ना, इनपुट्स तो वही रहेंगे, सिर्फ इसका ये कैलकुलेशन अलग हो जाएगा. नाउ सेकंड इनपुट क्या आ रहा है, B0 एक्सॉर सब. नाउ सब एक्सॉर B0, ये सेकंड इनपुट फुल एडर का. अभी हम इसको सॉल्व करते हैं. अभी ये केस में हमारा सब क्या है, 1 है, तो 1 एक्सॉर B0. ओके, 1 एक्सॉर B0 में क्या आएगा, 1 बार B0 प्लस 1 B0 बार. ये एक्सॉर का सिंप्लीफिकेशन है, राइट. सो 1 बार इज व्हाट, 0, एंड B0 वैसे रहेगा, और 1 इंटू B बार. सो 0 इंटू एनीथिंग इज 0 प्लस B बार. सो यहाँ पे मिल रहा है हमें B बार. हमें यहाँ पे सिर्फ B मिल रहा था, यहाँ पे हमें मिल रहा है B बार. ठीक है, नेक्स्ट इज A0 वैसे ही आएगा. सो हमारा सब्ट्रैक्ट जब सब इज इक्वल टू 1 है, तो हमें तीनों इनपुट क्या मिल रहे हैं, 1 प्लस B0 बार प्लस A0. ठीक है, ये हो गया हमारा फुल एडर में जाने वाले 3 फुल एडर का कैलकुलेशन. ठीक है, नाउ व्हेनेवर माय सब इज 1, आई विल बी गेटिंग 1 प्लस B0 प्लस A0. नाउ फर्दर ये क्या लिखा हुआ है, टूस कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट, मैंने आपको बोला था लास्ट लेक्चर में, फिर आपको मैं अच्छे से सॉल्व करके एक्सप्लेन करूंगी. नाउ see what is ones complement, what is two's complement. Ones complement is basically inverting each and every bit. Now suppose I have 1 0 1 0 1 0 as my bits.
तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे लेगी मैं, इन्वर्टिंग द बिट्स। तो 0 का 1 किया, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। तो ये जो है 0 1 0 1 0 1 इज द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। ओके, वंस कॉम्प्लीमेंट इज बेसिकली इन्वर्टिंग ऑल द बिट्स विच आर देयर। इन्वर्टिंग इज 1 का 0 करना है, 0 का 1 करना है। अब टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? टूस कॉम्प्लीमेंट ये होता है कि सबसे पहले तो आपको इन्वर्ट करना है सब बिट्स को, वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है इसका। तो 1 0 1 0 1 0 का मैंने पहले इन्वर्ट किया, दैट इज टूस वंस कॉम्प्लीमेंट लिया मैंने, 1 का 0 किया, 0 का 1 किया। अभी ये जो आ रहा है इसको मैं ऐड करूंगी 1 से, ठीक है। सो ये जो आउटपुट है मेरा, सॉरी वंस कॉम्प्लीमेंट जो मुझे मिल रहा है उसको मैं ऐड करूंगी 0 से, सॉरी 1 से, ठीक है, 1 से ऐड करूंगी। So whenever I am adding the ones complement to 1, I will be getting two's complement, ठीक है। So 1 ऐड करेंगे मतलब 1 plus 1 is 0, सॉरी 10। सो यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है। सो my two's complement is basically ones complement लेके उसका 1 ऐड करना है वहां पे, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने देखिए, यहाँ पे मैं बोल रही थी आपको 1 plus 1 को हम लिखेंगे 1 0, तो ये 1 जाएगा ऊपर कैरी में, और 1 plus 1 होता है 1 1, तो ये ऊपर का 1 जाएगा कैरी में, और ये 1 लिखेंगे हम यहाँ पे नीचे, ठीक है। सो दिस इज वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट। तो ये यहाँ पे वही है, ये आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। सो व्हेन सब इज इक्वल टू 1 द सर्किट परफॉर्म सब्ट्रैक्शन बाय टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो यही टूस कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। Now next is prove that a bar dot b bar, ये दो प्रूव करने हैं हमें, दो इक्वेशंस प्रूव करने हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन इज a bar dot b bar is equal to a plus b whole bar, ठीक है। तो let us consider first a bar dot b bar a plus b bar, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, a को 0 रखेंगे और b को भी 0 रख दिया हमने, ठीक है। तो ये मैंने लास्ट टाइम जो आपको प्रूफ किया था ना, प्रूफ करके बताया था, जब a को 0 रखेंगे तो 0 का 0 प्लस 0, लेफ्ट हैंड साइड को क्या किया हमने, 0 प्लस 0 बार, एक्चुअली यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो ये 0 बार प्लस 0 बार, 1 प्लस 1 इंटू 1 इज 1, और ये 0 प्लस 0 इज 0 का बार इज 1, तो ये दोनों का 1 बना रहा है। तो ये हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही किया है, a प्लस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी को, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक इसमें हमने क्या किया है, 0 और 1 0 हर कॉम्बिनेशन को पुट किया है, 0 0 1 0 0 1 एंड 1 1। तो ऐसे हमने प्रूव किया है कि a इज ये ऑल दीज टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्ट एंड एक्सप्लेन XOR गेट बाय यूजिंग बेसिक गेट। अभी हमने XOR गेट बनाया है यूजिंग बेसिक गेट्स। बेसिक गेट्स क्या होते हैं, एंड और एन नॉट गेट। तो एंड और एन नॉट में से कोई भी गेट यूज करके आपको क्या बनाना है, XOR गेट बनाना है, ठीक है। तो ठीक है, तो फर्स्ट क्या करेंगे, XOR गेट का इक्वेशन क्या बोलता है, a b बार प्लस a बार b। तो नॉर्मल क्या है, a इंटू बी है और a इंटू बी है यहाँ पे भी, तो ये तो एंड गेट बनेगा, ये भी एंड गेट बनेगा, और ये दोनों एंड गेट बनेंगे। ऐड करना है ये दोनों एंड गेट को, तो ऐड करने के लिए हम यूज करेंगे और गेट। तो नाउ एंड गेट लिए मैंने दो, ये एंड गेट में क्या इनपुट आ रहा है, फर्स्ट में a वैसे ही आ रहा है, b जा रहा है नॉट गेट से b बार बन के, फिर यहाँ पे a बार आ रहा है और b आ रहा है, तो इसके a b बार और a बार b को हम आपस और कर रहे हैं, तो ये बन गया a b बार प्लस a बार b विच इज XOR गेट, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम फॉर फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन विद द ट्रुथ टेबल। अभी ये बूलियन एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, इसका हमें लॉजिक डायग्राम बनाना है। तो आंसर क्या आएगा, ए बी बार प्लस बी बी सी बार प्लस ए बार सी प्लस ए बी सी, ये दिया हुआ इक्वेशन, इसका बनाना है हमें लॉजिक डायग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बाइफर्केट करते हैं अलग अलग, ठीक है। फर्स्ट क्या है, ए इंटू बी बार, दिस इज एंड गेट, दिस इज एंड गेट, दिस इज एंड गेट एंड दिस इज ऑल्सो एंड गेट। तो मैंने क्या किया, पहले 4 एंड गेट बना दिए ये चारों के लिए। अभी फर्स्ट एंड गेट में इनपुट क्या आ रहा है, ए आ रहा है और बी बार आ रहा है, तो बी बार के लिए मैंने क्या किया, नॉट गेट लगा दिया ताकि यहाँ पे बी बार जाएगा, ठीक है। तो सेकंड एंड गेट में क्या आ रहा है, बी और सी बार, तो बी वैसे के वैसे ही आएगा, बी इज कमिंग लाइक दैट ओनली, और सी बार जा रहा है, तो सी के आगे नॉट लगा के सी बार भेज दिया यहाँ पे मैंने, ठीक है। थर्ड गेट में क्या आ रहा है, ए बार सी जा रहा है, तो अभी ए क्या होगा, ए वैसे, अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप यहाँ पे अलग अलग ए बी सी ए बी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे आपको चाहिए वैसे।
नाउ ए बार सी है, तो ए क्या जाएगा, बार होके जाएगा और सी वैसे ही जाएगा, ठीक है। और फोर्थ में क्या जा रहा है, ए बी सी विदाउट एनी बार, तो ए बी सी नॉर्मल जा रहा है विदाउट एनी नॉट गेट, ठीक है। अब ये चारों जो एंड गेट है ये आपस में ऐड हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं मतलब इन चारों के बीच में आपस में क्या है, और गेट है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले तो सबसे पहले अब मैंने क्या किया कि ये दोनों को एक और गेट लगा दिया ऐड करने के लिए, और ये दोनों को एक और गेट लगा दिया ऐड करने के लिए, और ये दोनों का और वापस एक और गेट पे लगा दिया ऐड करने के लिए। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक और गेट डाल के ये चारों इनपुट्स वो और गेट में डाल सकते हो, ठीक है। दैट इज ऑल्सो ओके। if you want to add all this and if you want to do ORing of all these gates, then you can simply draw one OR gate and you can add all the 4 inputs, ठीक है। it is not restricted कि एक OR gate में कितने inputs होंगे, आप 4 inputs भी दे सकते हो OR gate में। तो एक OR gate ड्रॉ करके ये चारों inputs इसका 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 और ये चारों and के आउटपुट जो है वो OR gate में जा सकते हैं। इसको थोड़ा और एक्सपांड करने के लिए मैंने सिर्फ इधर 2 OR gate अलग अलग लगा के फिर वापस उनका और किया हुआ है ताकि ये वापस सब ऐड हो जाएगा, ठीक है। यू कैन डू एनी वे यू फील कंफर्टेबल। तो ये जो पिछला और गेट है, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इसका ट्रुथ टेबल उन्होंने पूछा है हमें बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने यही किया है, ठीक है। ए बी सी लिखा मैंने, ए बी सी के कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, ये जो कॉम्बिनेशन आपको याद करने पड़ेंगे, 0 0 0 फिर ये 0 1। तो ये कैसे याद रखोगे पता है आप, कॉम्बिनेशन जब 3 इनपुट होंगे तब पहले क्या करना है पता है, पहले ए में क्या लिखना है, 4 0 और 4 1 लिखने हैं, ठीक है, 4 zeros and 4 1। बी में लिखने हैं 2 0 2 1 2 0 2 1, ठीक है, 4 0 4 1 2 0 2 1 2 0 2 1। सी में क्या लिखना है, 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। पहले 4 थे, फिर 2 और फिर 1, ठीक है, 4 0 4 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1, ठीक है। 8 होते हैं, ठीक है, टोटल 8 आर देयर, 8 कॉम्बिनेशंस आर देयर व्हेन वी हैव 3 इनपुट्स, ठीक है। यहाँ पे 3 इनपुट्स है ना हमारे पास ए बी सी, तो उसका ट्रुथ टेबल बनाना है हमें। नाउ वी ऑल्सो हैव ए बार बी बार सी बार भी यूज किया है हमने, तो मैंने ऑलरेडी इसका एक कॉलम बना दिया ए बार सी बी बार सी बार का। तो ए बार बी बार सी बार क्या होगा, सिंपली इसका इन्वर्टेड, ये 0 0 0 है तो ये 1 1 1 हो जाएगा, ये 0 0 0 है तो 1 1 1 है तो ये 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 का हो गया 1 1 1 1 का हो गया 0 0। ऐसे मैंने ए बार बी बार सी बार बना दिया। Now next what they are saying is now we want a into b bar. Now a into b bar चाहिए, मतलब a और b bar का एंड करना है मुझे। तो एंड क्या बोलता है, जब दोनों 1 होंगे तो ही मैं 1 दूंगा। तो दोनों 1 कौन से है, ये और ये दोनों 1 है, ये और ये दोनों 1 है, ये दोनों 1 आएंगे, बाकी सब 0 0 आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज b इंटू सी बार। नाउ b इंटू सी बार, b और c बार का मुझे एंड करना है। तो b और c बार में कौन से दो 1 है, ठीक है, ये b, ये और ये, अगेन ये और ये, तो ये दोनों 1 आएंगे, बाकी सब 0 आएगा। एंड कर रही हूँ ना मैं, बेसिकली ये दोनों का एंड कर रही हूँ। एंड क्या बोले, दोनों 1 आएंगे तो ही 1 आएगा, बाकी 0 आएगा। नाउ ए बी सी का एंड करना है मुझे। ए बी सी का एंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, तीनों भी 1 चाहिए तभी 0 आएगा, 1 आएगा। तो ये ए बी सी में से तीनों भी 1, तो यही वाले इक्वेशन में है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ना है पहले कि हमें किसका एंड करना है, बी सी बार है या फिर ए बार है। अभी ए बी सी है तो मैं ये तीनों को कंसिडर करूंगी, तो ये तीनों में एबीसी में ये यही जो रो है इसमें तीनों 1 है, तो ये इसका 1 आएगा, बाकी सब 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ए बार सी यहाँ पे डाला है, ठीक है, ए बार सी वैसे से आएगा। नाउ वाई इज व्हाट, ऑरिंग ऑफ दिस थ्री, सो 1 2 3 4, ये चारों का मुझे, तीनों चारों का मुझे और करना है। तो ये और मतलब क्या बोलता है, एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट शुड बी हाई। तो और इज एटलीस्ट 1 मतलब ये चारों सब के सब में एक इनपुट हाई तो है ही, तो ये सब बनाएंगे और ये 0 आएगा। तो ये बन गया ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल ऐसे बनाएंगे आप, ठीक है। पहले इनपुट्स लिखेंगे, फिर बार लिखेंगे उनका, और फिर हर एक गेट का आउटपुट क्या आता है वो लिखेंगे। तो इसे बोलते हैं लॉजिक ट्रुथ टेबल ऑफ द लॉजिक डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या, ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट, लॉजिकल इक्वेशन, सिंबल एंड ट्रुथ टेबल एक्सप्लेन नैंड गेट। ये तो ऑलरेडी हमने करा हुआ है, नैंड गेट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सिर्फ मैंने यहाँ पर सिर्फ सिंपली वापस डाल दिया। नेक्स्ट इज एक्सप्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज यूजिंग बूलियन लॉज। अभी यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया कि बूलियन लॉज यूज करके हमें ये इक्वेशन प्रूव करना है, ठीक है।
तो लेट अस कंसीडर फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड। तो a प्लस बी और a प्लस सी, तो ये बूलियन लॉ आपको आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। पहले क्या करेंगे, a को मल्टीप्लाई करेंगे ये ब्रैकेट के साथ, फिर b को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा a इंटू ए प्लस a इंटू सी प्लस b इंटू ए प्लस b इंटू सी। ठीक है, सो a इंटू ए प्लस a इंटू सी प्लस b इंटू ए प्लस a b इंटू सी। नाउ ये b इंटू ए को a इंटू बी भी लिख सकती हूँ मैं, क्यूमुलेटिव लॉ की a और b को उल्टा करूंगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो a इंटू ए इज वॉट a, वो भी बूलियन लॉ से मिला मुझे। AC को वैसे ही रखा क्योंकि दोनों डिफरेंट है, कुछ कर नहीं सकते। BA को मैंने AB कर दिया और ये BC को वैसे ही रखा। ठीक है, अब ये फर्स्ट 3 टर्म्स जो है इसमें मुझे A कॉमन मिल रहा है, तो मैंने 1 प्लस सी भी रख कर दिया 1, इसमें 1 आया, तो 1 अगर मैंने A कॉमन ले लिया तो ये टर्म में कुछ भी नहीं बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 लिखा। ये टर्म में 6C बचा और ये टर्म में B बचा, तो 1 बाहर लेके ये तीनों टर्म का ब्रैकेट में क्या बचा, वो 1 प्लस सी प्लस बी बचा प्लस BC। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज a 1 प्लस ये c और b को अलग से ब्रैकेट में लिख रही हूँ। तो अगर ये अलग, इसको क्या करेंगे 1 प्लस सी बी, अब ये सी बी को अगर हम a कंसिडर करें, a की टर्म कंसिडर करें, तो 1 प्लस a इज व्हाट 1, राइट, 1 प्लस a इज 1। तो यहाँ पे वही कि हम 1 प्लस अगर इसको a कंसिडर करेंगे तो 1 प्लस a इज 1, तो यहाँ पे इसका क्या आएगा 1 आएगा, और ये b, तो a इंटू 1 ये टोटल का 1 आया आउटपुट, और ये bc, तो a प्लस bc विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये समझा को मैंने क्या किया, ये सी बी को मैंने 1 से ऐड किया, तो 1 से हम किसी को कुछ भी ऐड करते हैं ना तो हमें आउटपुट 1 ही मिलता है। ठीक है, सो हमें मिला यहाँ पे राइट हैंड साइड a इंटू 1 प्लस बी सी ए प्लस बी सी। ठीक है, a इंटू 1 इज a एंड बी सी। ठीक है, नेक्स्ट इज ए बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार और इज इक्वल टू ए बी प्लस सी। अभी हमें क्या, मैंने क्या किया कि पहले ये और ये टर्म्स को कंसिडर किया, फर्स्ट वाले को इसलिए नहीं किया क्योंकि ऐसे कुछ नहीं है, मैंने मेरे को बस मैंने ये फर्स्ट और लास्ट टर्म को पहले कंसिडर किया। तो इफ आई एम कंसिडरिंग फर्स्ट एंड लास्ट फर्स्ट, तो फर्स्ट और लास्ट में क्या कॉमन है, ए बी कॉमन है, राइट, ए बी कॉमन है, तो मैंने ए बी कॉमन ले लिया, बचा क्या, यहाँ पे सी बचा, यहाँ पे सी बार बचा, तो ए बी कॉमन लेके सी प्लस सी बार, और ये बीच का टर्म यहाँ पे वापस लिख दिया प्लस ए बार सी ए बी बार सी। ठीक है, नाउ c plus c bar is 1 from the boolean laws which we have seen previously। ठीक है, so c plus c bar is 1, so ab और बीच में 1 आएगा प्लस a b bar c। ठीक है, नाउ ab into 1 is ab प्लस a b bar c। अभी ab और a b bar c में क्या कॉमन है, a और a कॉमन है सिर्फ, b कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पे b बार है, c यहाँ पे c नहीं है, तो a कॉमन ले लिया, b प्लस b bar c। ठीक है, so one more law which is missing from the previous law is whenever you are doing such thing like a plus a bar b, यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे है और एक नेक्स्ट सेकंड वेरिएबल यहाँ पे है, तो वो आंसर बन जाता है सिंपली a प्लस b। ठीक है, सो whenever I am having a plus a bar b, then you have to ignore this a bar and directly write a plus b। so this is a Boolean law which is not mentioned there। ठीक है, वो वहां पे मेंशन नहीं किया हुआ है। so a plus a bar b is equal to a plus b। तो यहाँ पे क्या b प्लस बी बार सी है, तो यहाँ पे क्या आएगा b प्लस सी आएगा, b बार को मैंने इग्नोर किया, तो b प्लस सी। ठीक है, सो हियर वी गॉट राइट हैंड साइड, करेक्ट। नाउ थर्ड इज ac प्लस abc इज इक्वल टू ac। नाउ लेट अस स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड ac प्लस abc। अभी इसमें ac और इसमें भी ac है, तो मैंने ac कॉमन ले लिया और 1 प्लस b बना दिया, 1 प्लस b इज इक्वल टू 1, सो ac इंटू 1 इज ac। ठीक है, दैट्स व्हाई आई सेड कि आपको ये बूलियन लॉज अच्छे से याद करने पड़ेंगे, अगर ये बूलियन लॉज आपको नहीं आएंगे तो आप ये सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर एक स्टेप में आपको कोई ना कोई बूलियन लॉ यूज करना ही है उसको सिंप्लीफाई फर्दर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाई नॉर गेट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक, एक्सप्लेन विद कंस्ट्रक्शन। अभी हमने अभी तक क्या देखा था, नैंड गेट देखा था, नैंड गेट को यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं और नैंड गेट से हम कैसे बना सकते हैं बाकी सारे गेट्स। अभी हम नैंड के अलावा नॉर गेट भी देख रहे हैं, नॉर गेट को यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक क्यों बोलते हैं, नॉर गेट को भी यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं, और उसके कंस्ट्रक्शंस क्या होंगे, मतलब नॉर गेट यूज करके हम कैसे बाकी सारे गेट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है नॉर गेट सिंबल। तो हमें नॉट बनाना है मतलब क्या करना है, यहाँ पे भी सिंपली वही करना है, हमें दोनों इनपुट शॉर्ट करने हैं, बन जाएगा नॉट गेट। ठीक है, नेक्स्ट इज वी वांट टू क्रिएट एंड गेट, सॉरी और गेट, यहाँ पे और गेट बनाया हुआ है, और गेट में क्या किया है हमने, नॉर के आगे और एक नॉट लगा देंगे तो वो और बन जाएगा, राइट।
नॉर के आगे और के आगे नॉट लगाया तभी वो नॉर बन गया। अब ये नॉट को हमें कैंसिल आउट करना है तो और एक नॉट लगा देंगे यहाँ पे, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वही किया मैंने, और एक नॉट लगा दिया, बट नॉट के बदले मैंने क्या किया, यही नॉर गेट लगा दिया जो कि नॉट है। ठीक है, तो ये बन गया और गेट। नाउ आई वांट टू क्रिएट इज एंड गेट। अभी एंड गेट के लिए भी सिंपली नॉट और नॉट के इनपुट देके ये एंड बना दिया। ये सिंपली ये सेम ही है, नॉट नॉर और नैंड के कंस्ट्रक्शंस ऑलमोस्ट सेम ही है। सो फिर जहाँ पे हमने नैंड यूज किया वहां पे हम यहाँ पे नॉर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आप अच्छे से खुद से ट्राई करके देख लीजिए, आपको समझता है क्या। अगर आपको नहीं समझा तो आप नेक्स्ट लेक्चर में मुझे पूछ लेना क्वेश्चन क्या होते हैं। सिंपली सेम ही है, यहाँ पे सिर्फ नैंड की जगह पे हमने नॉर यूज करके गेट्स बनाए हुए हैं एवरीवेयर। ठीक है, so next is design a logic circuit such that output is 1। ठीक है, तो हमें ऐसा ये तीन इन्होंने हमें x is equal to 1, y is equal to 1, z is equal to 1, x is equal to 1, y is equal to 0, z is equal to 1, ये तीन हमें उन्होंने कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। और ये तीनों कॉम्बिनेशंस को ऐसा गेट यूज करके बनाना है कि उसके आउटपुट 1 ही आएंगे। ठीक है, अभी हमें मुझे बताइए कि कोई भी अगर यहाँ पे 111 है तो ऐसा कौन सा गेट है कि 111 से 101 से और 11101 से इनका आउटपुट 1 ही आएगा। ठीक है, और गेट, राइट, और गेट ही ऐसा गेट है कि एक इनपुट अगर 1 हुआ तो वो आउटपुट 1 देता है आपको। एंड गेट हम नहीं यूज कर सकते। एंड गेट क्यों नहीं यूज कर सकते, बिकॉज एंड गेट में ये जो दो है 1 0 और ये वाले, इसमें एक 0 है, इसमें एक 0 है, तो ये आउटपुट आपको 0 देगा। बिकॉज एंड गेट का रिक्वायरमेंट क्या है, तीनों 1 होने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे और गेट चूज किया। अब सबसे पहले क्या किया, x और y जाएगा 1 1 1 और ये 0 बन जाएगा। और यहाँ पे आप और एक इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हो, एक और गेट डाल के तीनों इनपुट एक साथ वो और गेट में दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी वही किया है मैंने। यहाँ पे भी आप x और y 1 0 जा रहा है, पहले 1 0 का 1 मिलेगा, z इज 1 1 1 का वापस 1 मिलेगा। तो ऐसा सिर्फ और गेट है जिसमें अगर एक भी इनपुट 1 हुआ या फिर सारे इनपुट 1 हुए तो आपको मिलता है 1 एज आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ कंट्रोल्ड इन्वर्टर एंड एक्सप्लेन। ठीक है, कंट्रोल्ड इन्वर्टर इज अनदर नेम फॉर एक्सॉर इन्वर्टर जो हमने प्रीवियसली देखा। और व्हाट इज फुल एडर, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन इट्स लॉजिक डायग्राम विद ट्रूथ टेबल। सो ये तो पिछले बार हमने देखा ही है। एक्सॉर इन्वर्टर इज बेसिकली दिस, कंट्रोल्ड इन्वर्टर इज एक्सॉर इन्वर्टर। एक्सॉर इन्वर्टर क्या है, ये जो हमने देखा यहाँ पे एक्सॉर इन्वर्टर, यही इसको ही बोलते हैं कंट्रोल्ड इन्वर्टर। ठीक है, तो तो दैट इज इट। तो यहाँ पे हमने लॉजिक गेट्स का चैप्टर खत्म कर दिया विथ ऑल द क्वेश्चन सॉल्व फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम, बोर्ड एग्जाम। प्रीवियस साल के जो 12th के क्वेश्चंस थे वही सब क्वेश्चंस मैंने यहाँ भी सॉल्व किए थे। टोटल 21 क्वेश्चंस थे हमारे पास। 21 में से कुछ कुछ तो रिपीट थे वैसे ही जो मैंने स्लाइड में डाले हैं, इसलिए मैंने उनके आंसर डाले नहीं है। जो ऐसे सॉल्व करने थे वो सब मैंने सॉल्व करके डाले हुए हैं। इसमें जो कुछ एडिशन करना है वो एडिशन करके छोटा मोटा मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, सब कुछ जो लास्ट लेक्चर में भी हमने मिस किया था वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे। सो अभी तक किसी को कुछ डाउट है इसमें, anyone has any doubts प्लीज आस्क, बिकॉज चैप्टर खत्म हो गया है। तो इसके बाद अगर आप डाउट पूछोगे तो आपको भी डिफिकल्ट जाएगा वो समझने में और मुझे भी एक्सप्लेन करने में। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, छोटा डाउट, तो डू नॉट हेजिटेट, प्लीज आस्क। सुयश स्वामीनाथन, प्लीज पिक अप गाइज। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज से नो और यस, एनीथिंग वुड डू। चैट में भी लिख सकते हो अगर आपको डाउट नहीं है तो, नो यस, बट प्लीज पिक अप। एटलीस्ट मुझे आइडिया आ जाएगा कि मैंने जो पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझा है, बिकॉज चैप्टर खत्म हो गया ना यहाँ पे। नेक्स्ट बार हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे तो मुझे नहीं समझेगा आपको कुछ डाउट है या नहीं है। व्हाट अबाउट स्वामीनाथन, आई वांट एन आंसर फ्रॉम यू स्वामीनाथन, प्लीज राइट yes or no or you can speak up. Hello, are you there? Okay, no problem. ठीक है, I'll take that as no doubt. Okay, so here we completed our logic gates chapter. So what I'll do is I'll refine all those slides, छोटे मोटे जो टाइपिंग मिस्टेक्स किए हैं मैंने या फिर फोटोज में कुछ अच्छे से कुछ नहीं दिख रहा है, तो I'll repair that, I'll refine those slides और मैं आपको वो एज ए नोट्स भेज दूंगी। ठीक है, मैं आपको भिजवा दूंगी वो नोट्स।
तो प्लीज रेफर ऑल दैट, एंड आपको मैंने कुछ होमवर्क दिया था वो भी आपने, आई एम होपिंग आपने वो किया होगा. प्लीज गो थ्रू ऑल द स्लाइड्स वंस अगेन, all the slides and all the things which I have taught up till now, and write those doubts if you have any doubts and come back to me in the next lecture. ठीक है, कुछ भी डाउट्स हो आप कभी भी पूछ सकते हो. ऐसे नहीं है कि चैप्टर खत्म हो गया तो आप वो डाउट मुझे नहीं पूछ सकते अभी. अगर आपको चैप्टर खत्म होने के बाद भी कोई डाउट हुआ है तो आप कभी भी मुझे आके पूछ सकते हो. ठीक है, सो व्हाट आई वांट यू ऑल टू डू इज, ये जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उसे स्लाइड्स एक बार वापस रेफर कीजिए and see if you guys are finding any doubt or anything which you do not understand, and you can ask me in the next lecture. ठीक है, so I think that is it for today. We can wrap up now.